table, right? So we have to write the drop table and give the table name. It is so many table, right? So that's why I'm just want to drop all those table, right? So that's why I'm. Right. So now we are just moving to what are the different kinds of constant used in the SQL when we creating any table, and what are the importance of these constant in creating a table or any object. So we have to see, in last time we have discussed there are two kinds of constant. One is called the column constant, another is called the table constant, right? Applying the constant. So we have to write create table, table name, and we write the column definition, and then we write the table constant, right? अभी आप यहाँ तक देखिएगा. On commit and delete we will discuss later on when we do some triggering, right? But before that, create table, table name, column definition, and table constant. So whenever we define any columns, so we write the column name and their data type with their size, and here we have to write the column constant. Column constant are applied on a particular column. That means what are the restrictions you are applying to any column, you have to provide this with their column definition. जब आप कॉलम की डेफिनेशन लिख रहे हैं उस समय आप कॉलम नेम के साथ में उसका डाटा टाइप तो देते ही थे, इसके साथ में आप उसके कांस्टेंट लेवल भी डिफाइन कर सकते हैं. If you don't want to define at the column level, if you are after defining all the column, if you write any constant, then that kind of constant is called the table constant. बात क्लियर हो रही है? जब कॉलम के ऊपर आपने कोई कांस्टेंट अप्लाई किया है तो वो कांस्टेंट कहलाएगा कॉलम कांस्टेंट. जब आप उस पूरी टेबल के ऊपर आपने कोई अगर कांस्टेंट अप्लाई किया है तो उसको कहते हैं हम टेबल कांस्टेंट. सो व्हाट आर द कॉमन कांस्टेंट इन दैट we have to discuss with the column constant. Some of the constant also used in the table also. You can create all these in the table also, like not null. One of the constant is not null. That means it will ensure that a column cannot have a null value. अगर आप किसी भी कॉलम के आगे जब डेफिनेशन लिख रहे हैं उसके आगे अगर आप नॉट नल लिखते हैं, उसका मीनिंग ये होता है कि आपकी वो कॉलम के अंदर की कोई भी वैल्यू नल नहीं होगी. यूनिक कांस्टेंट ensure that all value in a column are different. That means all value must be unique. In that case, this, if you are writing unique constant against any column, that means this column contain all the different value. So if you want to enter at any time a null, that will also enter into that, because null is also in case of unique. If you are again writing a null, then in that case it will violate that entry. Primary key is a combination of not null and unique. That means by using this attribute you can distinguish all your tuple, right? Key is what? It is an attribute by which you can distinguish all your attribute.
So you have already learned about this primary key. It is one set of attribute, right? Or set of attribute in that. Foreign key is what? Foreign key uniquely identify a row or record in another table. What is the meaning of this? That means if they are having two table, table 1 and table 2, if you want to join these two tables, right, based on any common attribute, so you have to see on which attribute you can reference to any other table. So in that case, in the first table, whatever the attribute is there, that attribute is called the foreign key, and to be any attribute a foreign key, that must be the primary key on the second table, right? So this is a concept of the foreign key. We have already discussed this. Now check constant. Check constant ensure that all values in a column satisfies a specific condition. That means अगर sometime आप कहें कि जैसे एम्प्लॉई का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉई अपना एंट्री करना चाहते हैं और एम्प्लॉई में लेस देन 18 कोई नहीं होना चाहिए एम्प्लॉई, राइट? और आपने लेस देन 18 एज रख दी, एज शुड नॉट बी लेस देन 18. तो अगर एज आपका 17 है तो दैट मींस वी आर प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक कंडीशन कि यू हैव टू फॉलो दैट कंडीशन. इफ दैट कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, राइट, दैट मींस you can't enter the data into the system, right? So this check ensure all values in a column satisfy a specific condition. Default means a default value you have to give into any particular column. So that is, in that case, you have to use the default. Index used to create and retrieve data from the database very quickly. So you have to create indexing, and over that indexing you can access the information quickly. So these are the different column constant. You can also use these constant at the table level, right? So one by one we have to write the syntax on the SQL form, right, and see how we can, what are the limitations of these constraints, how we can apply it, right? So we have to create a table, right? So we are writing create So see, create table, let it is an employee, right? And employee one ले लेते हैं और simply EMP one ले लेते हैं, fine. And we have to write one of the entry, that is employee ID, right? And what is the it is integer and it is not null. We are defining the column level, right? Then next attribute is ename and let it is a varchar. आप लोग करते जाइए साथ साथ, ठीक है? So that you know about it कि what are the limitation in this. So and I have defined this as a unique. Fine, good. And let it is age, and it is an integer, and here we have to write check constant, check, and age is greater than 18. Fine, age is greater than 18. Okay. Then let it is address. It is varchar 2. And the size this 10, and last one salary.
that it is number, and we have taken 10,2. So this is your key, right? Here, I have created one of the table, that is employee one, that contains some attribute, employee ID, employee name, age, address, and salary. So see here, we are defining not null as employee ID, where name is a unique, and age is as a age that having a check constant, that is check, and so on. Like, so see, we see the description of employee one, right? Let it is. So see here. When we describe this structure of the employee one table, so you have seen here employee ID is not null, right? And ename, it is unique. That means there may be a null value in that. Age may be null, address may be null, salary may be null. Right. So see here, we just insert into employee one. Okay, and values are, let it is 12, Kamal, age 32, greater Noida, 45,000, let it is this also. Fine. Here. EMP1. Right, so one of the table is created. If we want to check, so check, select, start from table, that is employee one. So see here, your table is inserted into that, right? Again, we want to insert into it, right, the value. So we have changed this Kamal as Ramesh. So what will happen in that? क्या ये वैल्यू इंटर होगी? बताएं? नो सर. क्यों? नहीं सर, क्योंकि हमारा जो ई नेम है वो यूनिक है. ई नेम इज यूनिक, तो यूनिक तो कर दिया, कमल हमारा था और हमने रमेश कर दिया. और ई आईडी, अच्छा, और ई आईडी आप कुछ नहीं देंगे? ई आईडी हमारा 12 था, अब की बार भी 12 दे दिया, तो क्या एंट्री नहीं लेगा? नहीं तो ले लेगा. क्या हुआ? स्क्रीन विजुअल है? हेलो सर, अभी आपका डेस्कटॉप विजिबल हो रहा है. अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें. आपका डेस्कटॉप विजिबल है. मतलब ये एसक्यूएल प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है? उसके ऊपर से टीम्स वाला दिख रहा है. आओ
अब भी अभी दिख भी रहा है। पिंक कलर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा, फिर से मैं एक वो बार है करता हूँ। खींच में खुला हुआ है। अभी रुक जाओ 1 मिनट, मैं फिर से करता हूँ। हाँ, आप बताइए, अभी दिख रहा है सभी कुछ? ये जो हमारा एसक्यूएल कमांड लाइन Yes, इंटरप्रेटर sir. दिख रहा है? यस सर, अब दिख रहा हाँ, तो मैं दिख कह रहा रहा था है। ये इंसर्ट साउंड दोबारा, क्या ये इंसर्ट होगी वैल्यू? निधि से पूछ रहा था, निधि है? यस सर। हाँ बेटा बताओ, क्या ये वैल्यू इंसर्ट होगी? सर एक Insert सेकेंड। चलो, आदित्य रोल नंबर 13, 14, 15 तीनों प्रेजेंट है? यस सर, 15 रोल नंबर। सर 13। 13 और 14 रोल नंबर 14 नहीं है। ठीक है, मानस सिन्हा, यस सर। मानस आर यू देयर? यस सर। तुम तो कभी कभी आते हो। सर वो इस टाइम कहीं बाहर जाना होता है सर, तो मैं 1:15 तक क्लास कर पाता हूँ सर। क्यों? सर वो एक्चुअली सर मम्मी को सर मतलब स्कूल लेने जाना होता है, इस वजह से सर। वो लंच टाइम होता है ना सर 1 से 2, इसलिए। चलिए, हाँ निधि आपसे बात कर रहा था, आपने बताया नहीं कि क्या होगा। सर इसमें सारी वैल्यूज तो हमारे पास सेम है। तो क्या हुआ? सर वैसे तो क्रिएट हो जाएगा तो फिर। मैंने कमल का रमेश कर दिया ना। हाँ जी सर, नेम चेंज है बस। रमेश, हमने तो ऐसे कांस्टेंट अभी कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं इस टेबल के ऊपर? एक तो नॉट नल, आपने देखा ना अभी, नॉट नल लगाया हुआ है, यूनिक लगाया हुआ है और चेक लगाया हुआ है। नॉट नल लगाया हुआ है ईआईडी के ऊपर, यूनिक लगाया हुआ है ईनेम के ऊपर, चेक लगाया है एज के ऊपर। तो आपने देखो ईआईडी इज 12, क्या नॉट नल है? नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। Yes, रमेश यूनिक है Unique, या yes. पहले क्या है इंक्ली, अभी रमेश है, दैट कैन बी इंक्ली। यस और देखो एज चेक 18 से ऊपर होना चाहिए है, कुछ Yes. भी एडजस्ट है, कोई भी वैल्यू है तो ये क्या होगा, ये एंट्री ले लेगा, क्रिएट हो जाए। इंसर्टेड इनटू दैट, राइट? यस अब सारे कह रहे कि हमने तो इस पे नॉट नल लगाया था, नॉट नल लगा लो, कोई दिक्कत क्या है, यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि देखिए एक और हम एंट्री डालते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया NULL, ठीक है, और रमेश का कर दिया कमलेश, कुछ भी डाल देते हैं, राइट? अब देखते हैं क्या होता है। अब बताओ क्या हुआ कि नल की वजह से क्यों नहीं हो रहा है? नल इज ए कीवर्ड दैट इज नल और इट इज नॉट नल। यहाँ पे कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू एम्प्लॉय आईडी, राइट? कैन नॉट इंसर्ट इनटू दैट, राइट? अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे करते हैं। चलिए, यहाँ पे डाल देते हैं 14 और कमलेश में डाल देते हैं सर वॉइस नहीं आई आपकी। दिखाएगा सभी को, एंट्री होगी। बताओ कौन बताएगा? चलो मैं ही पूछ लेता हूं। लवी कुमार आप बताएं। लवी, यस सर।
बताइए ये वैल्यू जो हमने इंटर करा रहे हैं। सर मुझे तो स्क्रीन ही विजिबल नहीं हो रही है। अरे बेटा, और कितने आकांक्षा तुम्हें विजुअल हो रही है? यस सर सर। यहाँ मौसम थोड़ा ठीक नहीं है यहाँ पे, इसलिए विजिबल नहीं है। पहले हो रही थी। सही कह रहे हो, मौसम की सर वजह मैं से भी स्क्रीन विजुअल नहीं हो। नहीं सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ अभी। चलो, ये एक नया है। वैसे मौसम की वजह से स्क्रीन विजुअल नहीं हो रही है। सर नेटवर्क इश्यू होता है ना। अच्छा, कहाँ रहते हो? सब प्लेशर। बुलंदशहर, बहुत दूर तो है नहीं। बुलंदशहर तो एक अच्छी सिटी है, वहां पे नेटवर्क तो अच्छे आते ही होंगे। नहीं सर नेटवर्क अच्छे आते हैं, लेकिन आज मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है ना, तो सर नेटवर्क कम ज्यादा हो रहे हैं। पहले अच्छा, विजिबल हो रही। चलो अच्छा, अस्प्रीत आप बताएं। अस्प्रीत ये बताइए, आपको विजुअल हो रही है स्क्रीन? आपके यहाँ मौसम ठीक है? अस्प्रीत, मुझे लग रहा है ये तो है ही नहीं। ऐसे कई सारे लड़के हैं जो बस आदित्य प्रकाश आप बता दो भाई। स्पीड Yes, तो sir. है नहीं। यस सर। क्या बताओ, इसमें ये एंट्री होगी या नहीं होगी? अब तक तो आप लोग एसक्यूएल में करके देख लेते। सर क्रिएट हो जाएगी सर। रीड हो जाएगी, क्यों? रीजन बताइए। सर क्योंकि सर वहाँ पे नल तो एक्सेप्ट कर ही रहा है वो, बस यूनिक वैल्यूज को मतलब चेक कर रहा हाँ, है। तो यूनिक देखना है उसे ना। यूनिक के केस में यहाँ पे यूनिक है नल, अभी तक तो कोई नल एंट्री कोई नहीं है, तो इंसर्ट होगी। लो एक और देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे अब की बार कर देते हैं 15 फाइन, और ये हो गया नल, ये हो गया चलो 30, और यहाँ पे डाल देते हैं डेली। ठीक है, कोई एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं चलो 45। अब बताइए इंसर्ट होगी? अब कौन बताएगा? चलो आकाश कुमार आप बताएं। आकाश, आकाश है नहीं। अभिनव चौहान बताओ। अभिनव, हाँ अभिनव। यस सर, आकाश कुमार। आकाश हो, चलो बताओ बेटा। यस सर। ये वाली क्वेरी रन होगी और इंसर्ट होगी कि नहीं होगी? सर नहीं होगा, क्यों? रीजन, रीजन लॉजिकल रीजन क्योंकि दीजिए। यूनिक वैल्यू इंसर्ट करना है। हेलो, जैसे वायलेट हो रही है, इसलिए ये वैल्यू नहीं होगी। अब देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास उसमें है। Here, right? So here there is a null, so that's why it's not permitted, right? एक नल आ चुका है, दोबारा नहीं है। ठीक है, एक और वैल्यू देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं अभिनव। अभिनव, आप लोग कर रहे हो साथ साथ में? करते जाइएगा, अभी मैं आपसे फिर बाद में भी पूछूंगा। हाँ
अभिनव चौहान है या चले गए? चले गए नहीं है तो अभिनव चले गए तो गए। राइट, रावत, अभिषेक रावत, अभिषेक रावत। यस सर। अब बताइए एंट्री आएगी इसमें या नहीं आएगी? आपके पास 3 कांस्टेंट लगे हुए हैं, वन इज नॉट नल, यूनिक और चेक। तो चेक करके बताइए कि क्या ये एंट्री हम अगर इंसर्ट कराना चाहें, क्या कोई हमारी कांस्टेंट को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? जरा जल्दी बताइए, फिर मैं ये कॉन्सेप्ट खत्म करें, जल्दी से आगे पहुंचे। अभिषेक, आवाज आ रही है? फिर बताओ। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, एज इज 18, दैट्स व्हाई दिस विल वायलेट द चेक कांस्टेंट, राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? एटलीस्ट उसके पास एज उससे 18 से ज्यादा होगी। तो देखिए 1 रो क्रिएटेड हो गया। फिर से अगर अब आप देखें तो आपके पास वो एंट्री इंटर हो गई है, right? So these are the 3 constants which are applied on the column level. You can also add these constants, right, at the column level, right? So we have just moved to Notepad. See, अभी हमने ये देखा क्रिएट टेबल इन दिस, सो लेट दिस यूनिक कांस्टेंट वी आर अप्लाइंग एट द टेबल लेवल, राइट? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलो इनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहां पर टेबल कांस्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कांस्टेंट। हाँ सर थोड़ा डिले है। डिले है? अच्छा, मेरे ये नोटपैड दिख रहा है सभी को? सर अभी को ओपन हो दिखी है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम टेबल, यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे कॉलम लेवल पे। कॉलम लेवल पे हमने ये नॉट नल लिखा था, फिर कॉलम लेवल पे यूनिक लिखा था, कॉलम लेवल पे चेक लिखा था। आप यूनिक कांस्टेंट को, चेक कांस्टेंट को और एनी फॉरेन की को या डिफॉल्ट कांस्टेंट को या प्राइमरी की को टेबल कांस्टेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए। कांस्टेंट, वी हैव टू राइट द कांस्टेंट। This is a keyword that is used for the applying constant. You can give the name of the constant. Let it is unique. और किस पे दे रहे हैं? E name पे दे रहे हैं. Fine. Unique name. ठीक है? Constant बनाया हमने unique name. And give the unique keyword. So unique is there. And which value you want to unique? That is E name. Right? Over this. Right, so we have to write this all. Okay. Unique.
constant and constant. Value unique. Oh sorry, यहाँ पे मैं भूल गया। Table already is there. Fine. See here, क्या किया मैंने? ये कांस्टेंट हमने टेबल लेवल पर डिफाइन किया, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे नोट पर दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? ठीक, अभी हमने ये यूनिक कांस्टेंट पहले क्या डिफाइन किया था? यहाँ पर यूनिक, राइट? यहाँ लिख दिया था, तो ये हमारा इमेज यूनिक। अब हमने टेबल लेवल पे कांस्टेंट डिफाइन किया यूनिक, ठीक है? सो यू हैव टू डू दिस, राइट? तो देखिए हमारा आपकी बार यूनिक हो गया, कौन सा? इमेज यूनिक। आप यहाँ पर एक से ज्यादा भी आप यूनिक कर सकते हैं, जैसे लेट फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं EID इज आल्सो यूनिक, राइट? सो वी कैन डू हियर इट इज एज ए टेबल लेवल। सो अगर मोर देन वन एंट्री को एक साथ आपको देना हो, the constant unique name ID, name और ID हमने एक नाम दे दिया unique name और ID, so in that case let it is a table number 3, right? So we have to see, right? ये बार unique name already exist कर रहा है, ठीक है? इसको change कर देते हैं, ठीक है? कुछ name and ID, ठीक है? So again we write here. Table is created. If you want to see, now describe this table. ESC, EMP, 3 and now see. So again, अब की बात क्या होगा? हम सेम एंट्रीज डालते हैं कुछ, right? And here we have to enter the values employee 3 and this C. One row is created. Now same फिर से अब बताइए, राजेश की जगह आपकी बार हमने कर दिया कमलेश, कोई भी, फाइन। बताइए क्या ये एंट्री जाएगा? बताएं, क्या ये एंट्री इंसर्ट होगी? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक बुराई, क्या ये एंट्री इंसर्ट होगी? हेलो हाँ बता बेटा। सर, मुझे कुछ शो नहीं आ रहा सर, नेट नहीं चल रहा है यहाँ पे। अरे तुम्हारी आवाज आ रही है, कैसे आ रही है भाई? नेट की सर वजह से यूपी तो में आती ना है। सर, उत्तराखंड में अपने होम टाउन में, तो यहाँ पे सर नेट नहीं चलता सही से। अच्छा, तुम्हारी आवाज कैसे आ रही? तुम बात कैसे सुन पा रहे हो हमारी? सर मैं बार बार थोड़ा रिकनेक्ट हो रहा हूँ, इसके बाद भी कटा था, तो अरे बेटा आवाज ही आवाज आ रही है सर उस टाइम से। क्या बताएं, चलो अब क्या बताएं, तुम लोग बहानेबाजी भी हो जाती है, कभी कभी सही भी बात होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं अनमोल, तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो सब सही होगा? यस सर। अरे बताएं, ये एंट्री इंसर्ट होगी? नहीं होगी सर। क्यों? सर EID सर सेम हो जाएगी। हाँ, EID हमने पहले 15 डाली थी, जिससे 15 डाल लें और आपने यहाँ पे यूनिक कीवर्ड, यूनिक को कांस्टेंट बना दिया। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट कीवर्ड के साथ में हमने जो ये नाम दिया है,
ठीक है, बेसिकली इट इज यूज फॉर व्हाट, is a name of the constant. If you want to delete these constant from the table, right, you have to drop these constant, right? Then जैसे कहते हैं ना ड्रॉप टेबल किया था, वैसे यहाँ पे ड्रॉप कांस्टेंट करके आप किसी भी कॉलम के कांस्टेंट को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप बात समझ में आए, यहाँ पे क्या ये एंट्री नहीं लेगा, सो चेक करके देख लेते हैं। हाँ, ये नेम पे तो आ रहा है, लेकिन ये स्पीकिंग यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, राइट, फाइन। चलो, now just we want to add one more constant, that is primary key. So अगर हमने यहाँ पे लिखा pk और किस पे दे रहे हैं id पे, और here we have to give the name of the primary key, और क्या नाम दे दिया हमने प्राइमरी की का, प्राइमरी की इज एम्प्लॉय id, राइट, और हमने इसको एम्प्लॉय 4 के नाम से टेबल को सेव कर दिया, ठीक है। हम इसको कर ले रहे हैं और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब देखते हैं, एम्प्लॉय 4 इज क्रिएटेड एंड इफ यू वांट टू इंसर्ट द वैल्यू in employee 4, so what will happen in that, this will be entered, right, again we have to enter this, ठीक है, this also be entered, यूनिक कांस्टेंट वायलेटेड, कौन सा यूनिक कांस्टेंट हमने वायलेट किया है, okay, 15 is not entered, 15 because already is there, so that's why this cannot be violated, so we have to change this, right, enter, so this is also entered, see if we are also entered like 19, that is also entered, fine, so see here, this let us start from, this is, yeah, see here, all these entries are unique, the name is unique in that, सॉरी ईनेम पे हमने कांस्टेंट हटा दिया था यूनिक का, यहाँ पे यूनिक का कांस्टेंट हटा दिया था, तो ये हमारे पास इसमें नेम रिपीट हो रहे हैं, फाइन। अगर हमें एक से ज्यादा प्राइमरी की एक से ज्यादा एट्रीब्यूट बना रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, ईआईडी और ईनेम दोनों को एक साथ ले लिया, ठीक है, और हम इस टेबल का नया नाम दे देते हैं फायर, राइट। अब की बात देखते हैं इस वाली एंट्री के साथ क्या होता है, चेक करिएगा। So again, PKID is already there, right? So we have to just make it PKID 1, right? Control C, right? Here, table is created. Now, again, if we want to enter the value, and this will be entered as 5, right? Enter. के बनाई हुई है,
यहाँ पे एक एंट्री हमने डाली हुई है 19, फिर रमेश, फिर 19 एंड सो ऑन लाइक दैट। ठीक है, फिर से हमने वो रो हमारी क्रिएट हो गई। अब की बार हमने फिर से रो में एंट्री इनपुट की है 19 एंड कमलेश। ठीक है, क्या ये एंट्री इसमें इंटर होगी? ऑलरेडी मैं तुम्हें एंट्री दिखा देता हूं कि क्या थी एम्प्लॉय इसमें। देखिए 19 रमेश एंड दिस, और अब हम चाह रहे हैं कि ये एंट्री में दोबारा रमेश है, हम यहाँ पे चेंज करे दे रहे हैं नाम कोई भी, लेट इट इज कुमार। ठीक है, अब बताइए क्या ये एंट्री इसमें इंसर्ट होगी? आकांक्षा बताएं, आकांक्षा यादव। नो सर, क्यों? क्योंकि EID हमारा प्राइमरी की है और ये ईमेल एंट्री भी हमारा इंसर्ट प्राइमरी। होगी, ये एंट्री इंसर्ट हो जाएगी। रीजन इज see here now my primary key is employee ID and email. That means the combination of these two attributes, so the combination of these two attributes must be unique and not null, so in that case here 19 is there, Ramesh is there, right? So next case see here 19 with Kumar is there, so that's why this entry become a unique entry, right? That's why it is in that. See here one more case. अब बताइए अगर हमने यहाँ पे कुमार कर दिया, कुमार इज नल, राइट, मतलब नेम इज नल, क्या ये एंट्री होगी? आकांक्षा है यस सर। ये एंट्री इंटर होगी या नहीं होगी? सर 1 मिनट स्क्रीन पे आ जाने दीजिए। चलिए अरे आ जाओ यार। अरे सर आप एंट्री एक बार मेरे को वापस ऐसे ही बोल दीजिए, हम लिख लेते हैं। क्या आ ही नहीं रही? आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है? सर डिले हो रहा है, आप बोल दीजिए हम बताते हैं। सर ये 19 नल, 19 दिल्ली और 54500 ये वाली है। हाँ, ये वाली एंट्री मैं पूछ रहा था कि आपके पास ये एंट्री जो अब वाली देखिएगा स्क्रीन में, तो हमारे पास एंट्रीज ऑलरेडी हैं, EID की है, ईनेम की है, एज की है, एड्रेस की है, सैलरी की है, बट अब हम ये एंट्री इंटर कराना चाह रहे थे, तो ये एंट्री भी इंटर होगी। क्यों? अब बताइए क्यों होगी ये एंट्री? जबकि यहाँ पे EID और ईनेम हमारे पास प्राइमरी की में, और प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट कहता है कि नॉट नल अलाउड नहीं होता है, यूनिक होना चाहिए, फिर यहाँ क्यों हो गया ऐसा? सर क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन चेक हो रहा है। कॉम्बिनेशन चेक करना था। देखिए कॉम्बिनेशन में 19 न कहीं नहीं है। अच्छा ऐसे ही मैं बात करता, अगर मैं करता यहाँ पे नल रखता और यहाँ पे कर देता राजेश, सॉरी मिसिंग एक्सप्रेशन, अच्छा सॉरी नॉट नल ऑलरेडी, यहाँ पे नल क्यों नहीं आ रहा है मेरा? बताइए यहाँ पे नल क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि हमने इसमें नॉट नल EID नॉट नल लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे नॉट नल हटा देते तो यहाँ पे ये नल ले लेता, राइट? अभी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे थे कि हाउ वी कैन क्रिएट ए प्राइमरी की। नाउ just want to create one more table, employee, and create table department
then department name as varchar2 of then डिपार्टमेंट लोकेशन डाल देते हैं, चलिए लोकेशन varchar, ठीक है, ऑफ 10 दिवाकर, डिपार्टमेंट लोकेशन हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम हो गया, लोकेशन हो गया, मैनेजर, MGR SSN, and here it is again an integer, fine, integer, and here we want to create this department as a foreign key, right? I want to create this department and manager SSN is a foreign key, right? So in that case we have to write references, and this will references to which were employee table EMP, यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट हम बना देते हैं नॉट नल की जगह प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइमरी की DID है बट रेफरेंस EMP टेबल EMP6, ठीक है, और EMP6 के किस को रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है EID को, राइट, EID को, यहाँ पे हमने दो टेबल बनाए, देखिए एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय 6, तो हम इसको पहले इंसर्ट करा लेते हैं, ठीक है, सर टाइम हो गया है, टाइम हो गया, जस्ट मैं इसको इंसर्ट करा के अभी ये देख लो एक बार कि कैसे रन हो रहा है, फिर हम, ठीक है, ये टेबल क्रिएट हो गई, अब हम इसमें एक वैल्यू इंसर्ट कराते हैं, insert into employee 6 and value यहाँ पे प्राइमरी की हमने दी है तो इसकी 1 बनती है, ठीक है, और चलो एक और दिया है तो इसमें हमने दे दिया 1 2, ठीक है, और इसमें दे दिया रमेश, 1 2, तो क्रिएट हो गई, और अगर हमने इनका देखना चाहें तो हैं 6 के बारे में कि क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है, राइट टू टेबल, एक और टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट की टेबल है, और ठीक है, टेबल इज क्रिएटेड, ठीक है, here MGR SSN now become a foreign key क्योंकि it will refer to an employee table where EID is an attribute that will be your primary key. Now, अब अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, ये वैल्यूज, पहली वैल्यू दी इंटीजर टाइप है, लेट इट इज डिपार्टमेंट 1, और ये डिपार्टमेंट नेम इज लेट इट इज ए प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ में डिपार्टमेंट लोकेशन दी हुई है, तो डिपार्टमेंट लोकेशन दिल्ली, और MGR SSN है तो MGR SSN let it is 12, right? So see here whether entry table view doesn't exist, department हमने क्या दिया हुआ था, डिपार्टमेंट, राइट, स्पेलिंग गलत हो गई है तो यहाँ पे लिखते हैं डिपार्टमेंट, राइट, फाइन, की बात क्या है, डी नेम value too large for the name varchar 2 10,
कितना दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ज्यादा हो गए, हमने 10 ही दिए थे, राइट। तो अगेन वी हैव टू राइट हियर, छोटा कर देते हैं थोड़ा, इसलिए एफिशिएंट नंबर देखिए 2 क्रिएट होगी। अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट करते हैं, देखिए। तो अब मैं एक वैल्यू देना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें इंसर्ट कराना चाहता हूँ, और यहाँ पे डिपार्टमेंट 13 देना है, सॉरी एम्प्लॉय 13 देना चाहता हूँ। क्या बताइए ये वैल्यू इंसर्ट होगी? वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी, और जैसे 2 किया, ठीक है, ये इंटीग्रिटी कांस्टेंट को वायलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 13 नाम का कोई भी एम्प्लॉय अभी तक इंटर नहीं हुआ है। सो इन दैट केस कि जब तक कि 13 नाम का कोई एम्प्लॉय इंसर्ट नहीं होगा तब तक हम नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू इंसर्ट द वैल्यू into employee and that is suppose we call it is 13, और ये हो गया सपोज अगर हम कहते हैं ये 25 एज हो गई, और ये हो गए नोएडा, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, और हमने इसको इंक्रीज किया। अगर हम इस वैल्यू को इंटर कराएं तो ये इंटर हो जाएगी, ठीक है। ये 13 नाम का एम्प्लॉय पहले एग्जिस्ट करना चाहिए तभी। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ए फॉरेन की कॉन्सेप्ट, राइट। So you have to again go through the book and also study about the reference key, right? So it's a very important concept of the reference key. Next we discuss different kind of concept at the table level, right? So ठीक है, फिर आप जा सकते हैं, इसको आप रिवाइज जरूर करिएगा। ओके सर। 4 लोग तो वैसे ही पहले भी छोड़ चुके, चलो कोई नहीं, ठीक है, जाए। थैंक यू सर। सर